Hello students, this is a class of farming system. What is the need of farming system? What is the meaning of farming system? And definitions of farming system. Where is the concern of need of farming system? जब हम एक ही कंपोनेंट को लेके कोई काम करते हैं खेती में, फॉर एग्जांपल हम खाली क्रॉपिंग पे काम करते हैं, तो हमको उतना बेनिफिट भी नहीं होता है और हमारा रिस्क भी बढ़ जाता है। तो फार्मिंग सिस्टम का जो एम है वो प्रॉपर कम्बिनेशन करना है डिफरेंट फार्म एंटरप्राइजेज का, जैसा इसकी डेफिनेशंस में भी आएगा। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन से मतलब मेरा है कि इसका मीनिंग अगर हम समझें इन जनरल, इसका मतलब है एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फार्म एंटरप्राइजेज फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स कि हम ऐसा एक कॉम्बिनेशन डिफरेंट फार्म एंटरप्राइजेज का बनाएंगे जिससे हम अधिकतम उत्पादन ले सकें, जिससे हम अधिकतम उत्पादकता ले सकें, जिससे हम खेती को टिकाऊ कर सकें, और ये सब हम बिना वातावरण को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए कर सकें। दिस इज द मीनिंग ऑफ फार्मिंग सिस्टम। इसमें हम रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। इसकी डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दिए, जिनको आई थिंक हमको नोट करना चाहिए। ये डेफिनेशंस हैं, फर्स्ट डेफिनेशन वेस्टफल, फ्रेशको एंड वेस्टफल ने 1988 में दी, और उन्होंने कहा फार्मिंग सिस्टम इज ए डिसीजन मेकिंग यूनिट कंप्राइजिंग द फार्म हाउस होल्ड, क्रॉपिंग एंड लाइव स्टॉक सिस्टम दैट ट्रांसफॉर्म लैंड, कैपिटल, लेबर इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड और सोल्ड। इसके बाद अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय लाल एंड मिलर 1990। उन्होंने कहा फार्मिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू अचीव इकोनॉमिक एंड सस्टेन्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू मीट डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म लाइवलीहुड while preserving resource base and maintaining a high level of environment quality। इन्होंने वही बात कही कि हम जो अचीव करें वो एनवायरमेंट क्वालिटी को बिना डिग्रेड किए अचीव करें। अनदर डेफिनेशन गिवन बाय शर्मा एट 1991, फार्मिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ एग्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इंटररिलेटेड and interact with themselves in a particular agrarian settings. It is a mix of farm enterprises to which farm families allocate its resources in order to efficiently utilize the existing enterprises for increasing the productivity and profitability of the farm. These farm enterprises are crops, livestock, aquaculture, agroforestry and agri-horticulture. This is the definition given by Sharma. And another definition given by Pandey et al. 1992, farming system is a mix of farm enterprises such as crop, livestock, aquaculture, agroforestry and fruit crops to which farm family allocates its resources in order to efficiently manage the existing environment for the attainment of the family goal.
if you see, all of the definitions shows that how we can use maximum use of resources, fertilizer resources, water resources, labor resources, land resources. So how we can use scientific way of resources, and how can extend our work round the year. Then another definition given by Jayanti et al. In 2002, farming system represents an appropriate combination of farm enterprises, for example cropping system, horticulture, livestock, fishery, forestry, poultry, and so on, and the means available to the farmer to raise them of profitability. It interacts adequately with the environment without dislocating the ecological and socio-economic balance on one hand, and attempts to meet the national goals on the other. These are some important definitions given by different authors. Now we discuss about scope of farming system. Farming enterprises include crop, livestock, poultry, fish, sericulture, etc. A combination of one or more enterprises with cropping, when carefully chosen, planned and executed, gives greater dividends than a single enterprise, especially for small and marginal farmers. Farm as a unit is to be considered and planned for effective integration of the enterprises to be combined with crop production activity. After that, scope of farming system. Scope is concerned, Indian economy is predominantly rural and agriculture oriented, where the declining in the land for farm side process are serious. हम सभी जानते हैं कि डे बाई डे हमारी जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो घटती जा रही हैं. तो ऐसी कंडीशंस में हमें निश्चित रूप से सचेत होकर काम करना होगा, जिससे हमारी हाउस होल्ड की नीड्स, हमारी ज़रूरतें, बाज़ार की ज़रूरतें, हमारी दूसरी ऐसी ज़रूरतें जिनकी हमें आज एग्रीकल्चर को, जिनके लिए हम एग्रीकल्चर के ऊपर बेस हैं, उनको पूरा करने की हमें ज़रूरत है. तो ये हमें एक बहुत बड़ी हमारे सामने चैलेंज है कि मार्जिनल फार्मर को हम ऐसा कैसा मॉड्यूल दें जिससे वो अपनी सारी ज़रूरतों, घर की ज़रूरतों को पूरा भी कर सके, और उसी के साथ मार्केट में जो मार्केट की जो नीड है उनको भी हम फुलफिल कर सकें. ये स्कोप है फार्मिंग सिस्टम का. नेक्स्ट वन इज इन प्रॉब्लम एग्रीकल्चर, मेजॉरिटी ऑफ द फार्म होल्डिंग्स आर ड्राई लैंड्स एंड इवन इरिगेटेड एरियाज डिपेंड ऑन द मानसून. एक दूसरी मेजर प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हम मैक्सिमम एरियाज में रेन फेड कंडीशन में हैं, ड्राई लैंड्स में हैं, और इरिगेटेड एरियाज में भी हम मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो यहाँ हमको उस तरह की स्ट्रेटजी भी बनाने की ज़रूरत है कि हम एक ही कंपोनेंट पे काम ना करके डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम करें. एप्रोप्रिएट कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फार्म एंटरप्राइजेज, जैसा कि हमने पहले आपको डेफिनेशन में कहा कि एप्रोप्रिएट कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज पे हमको काम करना पड़ेगा. हम क्रॉप के साथ डेयरी लेंगे, क्रॉप के साथ फिशरी लेंगे, क्रॉप के साथ पोल्ट्री लेंगे, क्रॉप के साथ पोल्ट्री लेंगे, क्रॉप के साथ हम फिश लेंगे, रेयरिंग लेंगे, हम क्रॉप के साथ रैबिट रेयरिंग लेंगे. तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोकेशन स्पेसिफिक हैं, नीड बेस हैं, और जो सूटेबिलिटी और पर्टिकुलर एरिया की बात हम करेंगे, वहाँ पे अगर वो सूटेबल है तो उन चीज़ों को हमें वहाँ पे लेना चाहिए, जिससे हमारा रिस्क कवर कम हो जाएगा और हम बेहतर एक मॉड्यूल एक हाउस होल्ड या एक फार्मर को दे पाएंगे. इन दिस कंटेस्ट, इफ फार्मर्स आर ओनली कंसंट्रेटेड ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, they will be subjected to a high degree of uncertainty in income and employment. For example, कि अगर कोई फार्मर कोई फसल ले रहा है, वो फसल चाहे खरीफ की है, चाहे नबी की है, चाहे जायद की है. आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास 3 सीजन्स हैं. वी हैव 3 सीजन्स इन इंडिया. वन इज खरीफ, सेकेंड इज रबी, थर्ड वन इज जायद.
तो हम अगर खरीफ में कोई क्रॉप ले रहे हैं और कोई भी नेचुरल कैलेमिटी है, कोई नेचुरल अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो नेचुरल प्रॉब्लम क्रिएट होने पे हमारी वो क्रॉप चली जाएगी और हमारे पास में रिस्क कवर के लिए कुछ भी नहीं होगा अगर हम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर ही केवल काम कर रहे हैं। और इनकेस हम अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं, क्रॉप प्लस डेयरी काम कर रहे हैं, क्रॉप प्लस पोल्ट्री पे काम कर रहे हैं, क्रॉप प्लस पोल्ट्री पे काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो घट जाएगा और हम निश्चित रूप से फुल्ली लॉस में नहीं होंगे। तो यही हमारा जो पर्पज है या स्कोप है फार्मिंग सिस्टम का, यही स्कोप है कि हमको उसी तरह से काम करना है जिससे हमारा रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, हमारी जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो वेरी स्मॉल है, मीन्स मार्जिनल फार्मर का जो परसेंटेज है मोर देन 70% मार्जिनल फार्मर है। तो मार्जिनल फार्मर के केस में हमारे लिए ये अप्रोप्रिएट कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम जो डे बाई डे हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें और फार्मर की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। नाउ पर्टिकुलरली स्कोप की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम इसी को यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि भाई आखिर रोल ऑफ फार्मिंग सिस्टम क्या है। तो रोल ऑफ फार्मिंग सिस्टम को अगर पॉइंट्स में हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो पहला चीज़ है कि फार्मिंग सिस्टम इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सिक्योरिटी। फार्मिंग सिस्टम को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर फार्म पे हमको क्रॉप भी मिलती है, एक पर्टिकुलर फार्म पे हमको डेयरी भी मिलती है, एक ही पर्टिकुलर फार्म पे हमको पिगरी भी मिल सकती है, एक ही पर्टिकुलर फार्म पे हमको गोटरी मिल सकती है, वहीं पर उसकी पर्टिकुलर फार्म पे हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिल सकता है। तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है उसको हम कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं और सिक्योर होते हैं उन सारी चीज़ों से, जो सारी चीज़ें हमारे फार्म पे हमको मिल जाती हैं। हाउस होल्ड की जो भी नीड्स हैं वो हमें सारी प्रोवाइड बैलेंस फूड। जाहिर सी बात है कि अगर सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, फ्रूट्स भी मिलेंगे, वेजिटेबल्स भी मिलेंगी, क्रॉप्स भी मिलेंगी, बाकी जो हमारी नीड्स हैं वो सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, चाहे वो फॉडर की बात हम करें, राउंड द ईयर फॉडर प्रोडक्शन का भी हम एक एरिया उसमें रखेंगे, तो हमारे एनिमल्स को भी वो प्रॉपर फूड मिलेगा। तो हमें जो एनिमल्स से जो मिल्क मिलेगा उसके माध्यम से बाकी चीज़ों से वी हैव रिसीव्ड इन ऑल द वे प्रोवाइड बैलेंस फूड, यानी बैलेंस फूड हमको मिल सकता है। क्वालिटी फूड बास्केट, अभी हम बात कर ही रहे थे कि बैलेंस फूड है तो मीन्स क्वालिटी फूड बास्केट है। क्वालिटी फूड बास्केट को हम हमारी बास्केट में सारी चीज़ें होंगी, जैसा हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी बास्केट में फ्रूट्स भी होंगे, वेजिटेबल्स भी होंगे, हमारे में कोर्स ग्रेन्स भी होंगे, हमारे एनिमल्स का फॉडर भी होगा, तो हमारे पास में क्वालिटी फूड बास्केट होगी जिससे हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हाई प्रोडक्टिविटी एंड एनहांस्ड फार्म इनकम, प्रोडक्टिविटी अगर हमारी ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी इनकम भी एनहांस करेगी। इफेक्टिव रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है कि हम इफेक्टिव रिसाइकलिंग भी कर पाएंगे रिसोर्सेज का, एक का इनपुट दूसरे में, एक का आउटपुट दूसरे में इनपुट बनेगा। फॉर एग्जांपल हम अगर मान लिया क्रॉप प्लस डेयरी करते हैं तो डेयरी का जो हमारा आउटपुट होगा वो हमारी क्रॉप में काम करेगा, मीन्स एज ए डंग हम उसको यूज कर सकते हैं एज ए मैन्योर। और जो हमारी क्रॉप का आउटपुट होगा, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रॉ होगा, जो दूसरी चीज़ें हैं, या ग्रीन फॉडर होगा, वो हमारा इनपुट बनेगा डेयरी में। तो एक का आउटपुट हम दूसरे के इनपुट में यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज, दूसरी बात हम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं, तो ये भी इफेक्टिव रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज का रिसाइकलिंग हम इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी मिनिमाइज कर सकते हैं और राउंड द ईयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हम दे सकते हैं। दीज ऑल आर द रोल ऑफ फार्मिंग सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। We meet at next lecture. Thank you so much.